Hello students, today I welcome you all in a new session where we are going to discuss about management. So students, in our last class we have discussed about what is management, the meaning of management, its characteristics, then the objective of management, why we used to management, a expensive tool in our business and in each and every field of our activities. Today we are going to discuss one of the important topic that in our last session we have discussed about various features or characteristics of management, in which we have a point that management is regarded or management is called as a science, as an art and a profession. Okay, so today we are going to discuss the 3 point in an elaborate manner, because see students, this is a common question and a common problem that arises in the mind of the students and other persons, though as I said, all are using management in our day-to-day life to manage our activities, to achieve the goal within restricted resources, restricted time and effort. Clear? So for that purpose we used to management, or we used to manage our activities. Clear? So in that case, in that course of due course, we learn 3 points, that management is science, management is an art and a profession. Clear? Where I have already clarified the 3 point in a brief manner, that why management is regarded as a science, why management is regarded as an art, and why management is regarded as a profession. Clear? So today we are going to elaborate the 3 point, which is a common question. Clear? Even in all sorts of exam, in all sorts of interview question, you will definitely ask that question, but why management is regarded as science, art and profession. Clear? So welcome to this session. Okay, please be concentrate, okay, while watching the video. Clear? Because these are very important topics, students. So the topic is called management. Management is a science. Management is a science, a profession and an art. Okay, so these 3, see, science, profession and art, these 3 are 3 separate disciplines. Discipline means different subject. Clear? All have their individual characteristics. Clear? When we show those characteristics, or when a particular thing or a particular activity satisfy those characteristics, then only we call that thing as a science, an art and profession. Okay, so today we are going to learn what are the reason because of which we call management as science, as profession and art. Clear? So see students, what happened actually, for clarify that topic we have to know that what are the basic characteristics that consist in science, art and profession, because of which they are called so. Clear? जो हम उसको साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन क्यों बुलाते हैं, कौन से क्वालिटीज हैं उसमें, उसके अंदर,
जिसके वजह से हम उसको वो नाम से बुलाते हैं, ठीक है. एंड देन आफ्टर नोइंग व्हाई वी कॉल इट साइंस, व्हाई वी कॉल इट आर्ट एंड व्हाई वी कॉल इट profession, then only we can compare it with management, where we can satisfy or we can prove that yes, management is a science, a art and profession. Clear? So first, now we have to focus on knowing what are the characteristics of science, profession and art. Okay, so see, first we discuss the point that management is a science. Management is a science. Okay, management is a science. Why we call management as a science? Clear? So there are some specific features in science जो कि मैनेजमेंट में भी है. साइंस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में भी हैं. ठीक है, तो क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स? ठीक है, तो कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके वजह से हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज आल्सो ए साइंस. क्लियर? तो सी, वो जो है पॉइंट्स, दोज आर लाइक साइंस has some important characteristics. Clear? Science has some important characteristics because of which this is called a different, we can say different, okay, different, clear, or distant entity. Clear? So students, so here we are using different words that we called as a different, distant entity or a discipline. Discipline means a subject. Okay, so there are some important features, there are some important characteristics because of which we know or we call those as a distinct, means in the whole universe, in the whole world, science has its own identity. Okay, it is recognized as a separate discipline. Okay, students are making their career in this stream and in this discipline. Clear? So it has some important characteristics. What are those characteristics? Okay, see, those characteristics are, number one, as I have already discussed in the later class, but that is in a brief manner. Today we are going to elaborate it in. So that first characteristics is that it is a systematized body of knowledge. It is a systematized body of knowledge. Okay, systematized body of knowledge. Systematized body of knowledge, what it means, student? Systematized body of knowledge means we must follow some systematic process, some systematic knowledge, okay, to know or to use the science, the technique of science in our activities. Okay, so we call it as a systematized body of knowledge, okay, because science is, say, science are based upon empirical evidence, empirical proofs. Empirical means those are real in life. Clear? Not imaginary,
clear, not imaginary things, not predictions, clear. Science is not about prediction, as like management is all about, in management we do predictions, but in science we do not have prediction. Okay, हम prediction नहीं करते हैं, क्या करते हैं, अपना जो भी है प्रिंसिपल, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट हम डेवलप करते हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन एम्पिरिकल सिचुएशंस. एम्पिरिकल सिचुएशन मींस द रियलिटी, जो हुआ है, जो हो चुका है, उसके ऊपर हम कुछ प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं, जो कि साइंस में होता है. हम कुछ नया मेडिसिन डेवलप करते हैं, कब डेवलप करते हैं, वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग कि फ्यूचर में ये बीमारी आ सकता है, फ्यूचर में ये डिजीज आ सकता है, तो चलो इसके लिए हम कुछ मेडिसिन डेवलप करते हैं. ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. क्या होता है, पहले तो बीमारी का कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है, ठीक है, फिर उसका इफेक्ट होता है, होने के बाद हम जब पता चलता है हमें कि चलो ये थोड़ा डेंजर में जा रहा है, तो हम एफर्ट डालते हैं बेस्ड ऑन आवर एम्पिरिकल सिचुएशंस कि ऐसा क्या क्या हुआ था, ये किसके साथ रिलेटेड है, ठीक है, उसको रिगार्डिंग कुछ कंपोजिशंस, कुछ केमिकल रिएक्शन बना के हम मेडिसिन बनाते हैं, है कि नहीं, तो वो मेडिसिन इफेक्टिवली काम करता है. क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि एम्पिरिकल रिलेशनशिप, एम्पिरिकल सिचुएशंस के बेस्ड है, सिस्टमेटाइज आता है कि नहीं, सिस्टमेटाइज बेस्ड ऑन रियल थिंग्स. सिस्टमेटाइज हियर वी मीन बेस्ड ऑन रियल थिंग्स, नो प्रिडिक्शंस, नो इमेजिनरी थिंग्स, नो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट. क्रिएटिविटी इज नॉट हियर. क्लियर? क्रिएटिविटी इधर नहीं है. क्लियर? इनोवेशन, क्रिएटिविटी इधर नहीं है. दीज आर बेस्ड ऑन सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. एम्पिरिकल प्रूव्स रियल थिंग्स, दोज आर ऑलरेडी हैपन. क्लियर? जिसका कुछ इंपैक्ट हमें हुआ है, वो इंपैक्ट को दूर करने के लिए हम वो यूज करते हैं, ठीक है. सो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में है कि नहीं, हाँ है, डेफिनेटली है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी हम जब प्रिडिक्शन करते हैं, दोज प्रिडिक्शंस आर सिस्टमेटाइज्ड, है कि नहीं. हम जो प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर के लिए कि आज कि व्हाट इज द बजट और व्हाट विल बी द बजट फॉर दिस ईयर, ओके, व्हाट इज द सेल्स बजट, व्हाट इज द टर्नओवर, ठीक है, सर्विस कितना प्रोवाइड करना है, फाइनेंस कितना आएगा, डिफरेंट जो है अपना, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन हो, परचेज, सेल्स, कॉस्ट, फाइनेंस, अकाउंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेलिंग, ठीक है, ये सब जो डिपार्टमेंट्स वाले हैं, सब अपना अपना बजट बनाते हैं. फिर वो सब बजट का एक प्राइम बजट बनता है, एक है कि नहीं, एक मास्टर बजट बनता है. तो वो जो बजट में हम दिखाते हैं जो फिगर्स, दोज आर बेस्ड अपॉन सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, जो कि बेस्ड अपॉन पास्ट नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज, जो कि पहले हमारे साथ हो चुका है, उसके हिसाब से ही हम बनाते हैं कि चलो वो पिछले साल ऐसा हुआ था, ये साल ये होने वाला है. ओके, तो डेफिनेटली है कि नहीं कि मैनेजमेंट में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. दैट्स व्हाई वी कॉल मैनेजमेंट एज साइंस, क्योंकि एक जो है कैरेक्टरिस्टिक वो सेटिस्फाई हो गया, है कि नहीं. क्लियर? देन नेक्स्ट इज दैट इज द नॉलेज इज बेस्ड ऑन observation, based on observations and experience. Okay, based on observation and experience. Clear? Students, से साइंस जो होता है इट्स ए प्रोसेस, है कि नहीं. जो प्रोसेस है, जो भी हम साइंस में डेवलप करते हैं, वो कैसे डेवलप होता है, मतलब बाय फोर्टनाइट, कल रात था आज दिन है कि नहीं, रातों रात कुछ भी डेवलप नहीं होता है. क्लियर? रातों रात डेवलप नहीं होता है. कैसे डेवलप होता है, वो डेवलप होने के लिए क्या करते हैं कि एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो कि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड दैट इज आल्सो बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन. हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, है कि नहीं. कोई अगर कुछ नया कुछ डेवलप करना है, कोई नया प्रॉब्लम आ गया, तो उसको हम ऐसे ही अपने आप कोई भी सॉल्यूशन उसका डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम डेवलप करते हैं. क्लियर? कैसे? दैट इज बेस्ड अपॉन आवर ओन एक्सपीरियंस. जो एक्सपीरियंस हमें
मिला है, that we gain from our operations, from our activities, clear, and we observe the reality, those we call the empirical situations, उसको observe करते हैं, ठीक है, कि ये जो है सिचुएशन, ये सिचुएशन पहले कभी हुआ था क्या, क्लियर, पहले कभी ये सिचुएशन आया था क्या, तो वो टाइम पे वो सिचुएशन कैसे हैंडल हुआ था, कैसे सॉल्व हुआ था, है कि नहीं, उसके हिसाब से ये अपना एक्सपीरियंस, ये वो ऑब्जर्व किए, ये हमारे एक्सपीरियंस जो है कि हमने अपने आप कुछ गेन किए, उसको मिला के हम वो सॉल्यूशन डेवलप करते हैं, है कि नहीं. सो इन द साइंस आल्सो व्हाट हैपन, इन द साइंस द थिंग्स वी डेवलप दोज आर बेस्ड अपॉन रेगुलर प्रैक्टिस, क्लियर, रेगुलर प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. हम फोर्टनाइट इसको डेवलप नहीं कर सकते, क्लियर, कुछ भी अगर डेवलप होता है, कुछ भी अगर हमें कुछ फ्लिक्स करना है, प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, दैट मस्ट बी बेस्ड अपॉन आवर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन. उसके हिसाब से अगर हम नहीं करेंगे, सो दैट मे नॉट फिट टू आवर सिचुएशन. नहीं, जो है अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको वो टच नहीं करेगा, उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, बिकॉज दोज आर नॉट बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंस. ओके, क्लियर. सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट में भी ये जो पॉइंट है, मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मैनेज इन द मैनेजमेंट आल्सो व्हाट वी डू बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, क्लियर, वी ऑब्जर्व आवर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट रिजल्ट्स. ओके, पास्ट रिजल्ट को देखते हैं, वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, है कि नहीं, ठीक है. जैसे कि हम लाइक बजट बनाते हैं, ओके, सेल्स कितना करना है, प्रोडक्ट डेवलप कितना करना है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर. सी nowadays marketing getting more or vibrant place, clear, in the field, in the world, we can say वर्ल्ड में अभी मार्केटिंग का बहुत ही ज्यादा स्कोप है कि नहीं, वो बहुत एक्सट्रीमली यूज होता है. कोई भी एक बिजनेस आप ले लो, उसमें मार्केटिंग तो ही है कि नहीं. कोई भी एक बिजनेस करता है तो पहले वो मार्केटिंग के बारे में सोचता है कि हम इसको मार्केटिंग कैसे करेंगे, है कि नहीं. मार्केटिंग मतलब दोज आर थिंग्स दैट वी हैव, 4 P's, कि प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करना है, उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है कि नहीं, वो उसको किधर किधर बेचना है, द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, है कि नहीं. ये सब आज के दुनिया में सब कोई करता है, क्लियर. इवन कि हम जब देखते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आल्सो वी हैव टू यूज मार्केटिंग, हम मार्केटिंग करते हैं ताकि बच्चों के पास अपना जो कंटेंट है वो पहुंच पाए, है कि नहीं. तो ये जब सब करते हैं मार्केटिंग के हिसाब से, सो दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा अपने क्लासेस में मार्केटिंग को रिगार्डिंग, और वो भी हम एवरीडे देखते हैं, तो मार्केटिंग के रिगार्डिंग अगर हम एग्जांपल लेंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है. सो बिजनेस में क्या होता है, जब भी हम कोई सोचो कि हमें अभी एक अपना प्रोडक्ट डेवलप करना है, कितना पीस डेवलप करेंगे, कितना क्वांटिटी डेवलप करेंगे, ठीक है. उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पिछले साल हमने कितना डेवलप किया था, ठीक है. उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये दैट इज द ग्रोथ रेट, क्लियर, ये है अपना ग्रोथ रेट, तो उसको हिसाब से पिछले साल ये था, that was the our production aim, and today we have to reach that much, clear, this much or that much according to the growth rate, clear. So ये भी हो गया कितना, कैसे, that is based upon the past experience and observations, okay, clear. So that's why this characteristics is also satisfied by management, clear, जिसके वजह से हम उसको साइंस भी बुलाते हैं, ठीक है. और भी हैं बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, और है जैसे कि वो तो है सबसे इजी, आसान वाला, दैट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सली, और वी कैन से यूनिवर्सली एप्लीकेबल. ओके, साइंस का, क्लियर, द प्रिंसिपल्स, द थॉट्स, द कॉन्सेप्ट, क्लियर, द टेक्निक्स which are developed, which are there in science, those are universally applicable. Universally applicable means wherever, whenever, clear, where कोई भी जगह पे जा लो, clear, कोई भी जगह पे जाओ, wherever, whenever, कोई भी टाइम हो, clear, whatever may be the situation, clear, in all cases the solution is only one, clear. साइंस, जैसे कि अभी कोई एक
डिजीज आ गया तो ये डिजीज अगर कोई भी टाइम पे आए, कोई भी जगह पे आए, क्लियर, कोई भी सिचुएशन पे आ जाए, वो मेडिसिन उसका सेम ही रहता है कि नहीं? जो कि हम कंपोज करते हैं केमिस्ट्री में, जब हम कहते हैं कंपोजिशन कि किसको किसके साथ कितना मिलाने से एक कुछ नया चीज डेवलप होगा, वो भी यूनिवर्सल है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। आप किधर भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, दैट इज डेफिनाइट। ओके, वो भी चेंज नहीं होने वाला, वो भी एग्जैक्टली ही रहेगा, है कि नहीं? बाकी है कि आप कोई भी, जैसे हम देखते हैं फिजिक्स में भी, है कि नहीं, टाइम, स्पीड, मोशन, ठीक है, ये सब भी जो हम अप्लाई करते हैं, सब एक ही सिचुएशन, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है कि नहीं? अपना इंडिया हो कि यूएस हो कि यूरोप हो कि ऑस्ट्रेलिया हो, सब एक ही पॉलिसी, एक ही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं, है कि नहीं? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। एंड उसको अगर हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ, तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी वैसा ही है, क्लियर। मैनेजमेंट इज आल्सो यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अगर आपके पास मैनेजमेंट का फंडामेंटल क्लियर है, क्लियर, इफ यू हैव ऑल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कैसे करना है, ये क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इंपॉर्टेंस, उसके लेवल्स जो है डिफरेंट हम देखेंगे प्रीवियस क्लासेस में मैनेजमेंट का टॉपिक्स, क्लियर, वो सब अगर आप मास्टर कर गए, आपको अगर उसका नॉलेज आ गया एक बार, तो आप कहीं पे भी जाओ, आप वो सब मैनेज कर सकते हो। इंडिया में हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, मे बी इट लार्ज, मीडियम, स्मॉल, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ऑल ओवर द ग्लोब, क्लियर, in everywhere, in every time you used to have that same principles, clear, same technique, same knowledge, same experience you used to solving different activities and to manage your problems. Okay, clear? So that's why we say management is a science. Clear? Okay students, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो points है, clear, those points I used to clarify, clear. Here I am not using to explain this in words, clear, because see those things you find in your textbook. Okay, textbook में सब है, but what is the concept कि textbook में आप डायरेक्ट देख के उसको नहीं समझ पाओगे कि सर ये क्या दिया है, यूनिवर्सल क्या है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है, ठीक है, you might not get that point. So that's why here I am make you understand that point. वो समझ जाओ एक बार पहले अपने ओन कंसेप्ट में, एक बार समझ जाने के बाद वो जो वर्ड्स हैं, जो कैसे लिखना है, वो आप सीखोगे अपने टेक्स्ट बुक में से, उसको आपको पढ़ना है कि नहीं, बाय हार्ट करना है, क्लियर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हियर आई एम क्लैरिफाइंग योर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होने के बाद उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, दैट इज यू हैव टू लर्न और यू हैव टू गेट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है कि वो जो पॉइंट में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, मैंने जो बोला वही पॉइंट्स हैं सब, ठीक है, वो आप एक बार समझ में आ गए, जो समझ में आ गया, माइंड में रह गया, वो आप कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, है कि नहीं। बट अगर हम कोई भी चीजों को अगर रट्टा मार के बोलने के लिए जाएंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे, बट समझ के अगर बोलेंगे तो डेफिनेटली बोल पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हियर आई एम यूज्ड टू मेक यू क्लैरिफाई द पॉइंट्स, क्लियर, एंड देन यू हैव टू यूज योर टेक्स्ट बुक फॉर elaborating that points. Okay, clear? Here I am not elaborating that in detail. Clear? तो ये हो गया। बाकी और क्या है मैनेजमेंट में और साइंस में जिसके वजह से हम इसको बोलते हैं कि वो मैनेजमेंट भी एज ए साइंस। और क्या है, और एक इंपॉर्टेंट फीचर है साइंस में जो कि कॉज एंड इफेक्ट relationship. Cause and effect relationship. Okay, so see in science, clear, science is purely based upon cause and effect relationship. Science is purely based upon cause and effect relationship. Cause and effect relationship मतलब cause and effect, what it mean? Cause जब भी कुछ होता है, ठीक है, cause and effect means I slap you, you slap me, ठीक है कि नहीं। So you slap me, what is the cause? Because I slap you, that's why you slap me, that is the cause and effect. Clear? सब चीजों का एक cause and effect relationship रहता है कि नहीं।
मतलब एक चीज डेवलप हुआ, किसके वजह से डेवलप हुआ, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज इट्स इंपैक्ट, है कि नहीं। ये जो मैंने किया, मैंने थप्पड़ मारा, व्हाट इज द इफेक्ट, द इफेक्ट इज आई आल्सो यूज्ड टू एंजॉय ए स्लैप, क्लियर, बिकॉज आई यूज्ड टू स्लैप यू, यू यूज्ड टू स्लैप मी, है कि नहीं। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माय स्लैप, द इफेक्ट इज माय योर स्लैप, क्लियर। सो यू स्लैप मी बिकॉज ऑफ आई स्लैप यू, क्लियर। सब चीज का आप अगर एक देखो छोटे बच्चे को, ठीक है, आप अगर उसको हंसाने की कोशिश करोगे तो वो भी आपके साथ हंसेगा, है कि नहीं। अगर आप इसको परेशान करोगे, मारोगे, तो वो भी आपको मारने के लिए पीछे पीछे भागेगा, है कि नहीं, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि साइंस में तो डेफिनेटली है ही है कि नहीं, कि पत्थर को अगर हम कितने स्पीड से ऊपर फेंकेंगे तो वो कितने स्पीड से नीचे आएगा, है कि नहीं। डिस्टेंस, इतना स्पीड से जाने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करते हैं, क्लियर। दिस आर ऑल बेस्ड अपॉन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, है कि नहीं, जो कि हम डेवलप करते हैं साइंस में, कि एक चीज डेवलप होने के पीछे एक रीजन रहता है, नहीं। सो दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि साइंस में भरपूर है, और कोई में है कि नहीं है, और बाकी टॉपिक में ऐसा, डिसिप्लिन में ऐसा नहीं है, बट साइंस में बहुत ज्यादा है कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज इट्स ऑल एफर्ट, बिकॉज इट्स ऑल रिजल्ट्स, इम्प्लीकेशंस, इंपैक्ट, दैट इज बेस्ड अपॉन सम कॉज। कोई एक कॉज के लिए ही हम एक मेडिसिन डेवलप करते हैं, क्यों, बीमारी को अच्छे करने के लिए, है कि नहीं। हमने साइंस में जो भी डेवलप किया, रॉकेट छोड़ते हैं स्पेस में, अपने जो है क्राफ्ट छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, क्यों, एक कॉज है, एक कॉज को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही मैनेजमेंट भी वैसा ही एक कॉन्सेप्ट फॉलो करता है कि नहीं। मैनेजमेंट में भी हम क्या करते हैं, जो कि हमने देखा इन द ऑब्जेक्टिव, दोज आर द ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमने जो देखा था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पर्सनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, कि अपना स्टेटस मेंटेन हो, प्रॉफिट अर्न हो, ठीक है, एक सैलरी मिले, एक लाइवलीहुड चले, रेपुटेशन हो, ठीक है कि नहीं, जो जो रहता है अपना जो ऑब्जेक्टिव, जो कि हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, ठीक है, वो सब सेटिस्फाई करने के लिए अच्छे से हम मैनेजमेंट को अडॉप्ट करते हैं, क्लियर। तो मैनेजमेंट इज अडॉप्टेड टू सेटिस्फाई दोज कॉज, ओके, दोज थिंग्स, वो सेटिस्फाई करने के लिए हम मैनेजमेंट को यूज करते हैं, ओके। अगर वो नहीं होता तो हम मैनेजमेंट नहीं करते, है कि नहीं। सोचो कि अभी अगर लाइक संडे है, अपना कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, बस रेस्ट करना है, तो क्या करते हैं हम, द कॉज इज नथिंग, वी हैव नो कॉज, तो हम क्या करते हैं, पूरा दिन भर सोते हैं, आराम से मजा करते हैं, है कि नहीं, क्यों, बिकॉज वी हैव नो कॉज। तो कॉज नहीं है तो कुछ भी मैनेज नहीं करना है, हम कुछ मैनेज नहीं करते हैं कि चलो मैं 6 बजे उठ जाता हूं, नहीं उठना है, क्योंकि कोई कॉज नहीं है, क्या करूंगा उठ के, 6 बजे उठ के क्या करना है, कोई भी काम नहीं है, तो क्यों उठूं, है कि नहीं। बट मंडे को हम क्या करते हैं, वी मैनेज, हम मैनेज करते हैं अपने एक्टिविटीज, कि 6 बजे उठना है, फ्रेश अप होना है, फिर स्कूल जाना है कि कॉलेज जाना है, फिर क्लासेस अटेंड करना है, ठीक है, फिर कुछ वोकेशनल क्लासेस जाना है, फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना है, फिर पढ़ाई करना है, तो कौन सा होगा, कितने बजे होगा, ये सब हम मैनेज करते हैं, बिकॉज वी हैव सम कॉज है कि ये सब हमें हासिल करना है, आज के डे में ये सब मुझे क्या टचअप करके जाना है, ठीक है, तो इसके लिए हम मैनेज करते हैं। बट संडे है, कुछ मैनेज नहीं करना है, तो हम आराम से रेस्ट लेते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो मैनेजमेंट इज डेफिनेटली इज बेस्ड अपॉन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ओके। तो जो भी हम करते हैं मैनेजमेंट में, बिकॉज ऑफ ऑल टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम मैनेजमेंट में जो भी करते हैं उसका एक इंपैक्ट रहता है, उसका एक रीजन रहता है, ठीक है, काम है उसका एक इंपैक्ट है, उसका एक रीजन है, okay. So we used to manage our business to earn more and more profit and to satisfy our objective, ठीक है, because of that point we used to management, okay, we used to manage our business by spending lots of money, clear, okay students, आ गया समझ में। So basically ये जो 4 पॉइंट हैं, ठीक है, कि that is a systematized body of knowledge, science is based upon observation and experience, science is based upon
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैनेजमेंट के पास भी ये जो चार कॉन्सेप्ट हैं चारों के चारों हैं, ठीक है। बट सी वन मोर थिंग इज दैट मैनेजमेंट वो अगर पूछेगा कि मैनेजमेंट इज ए साइंस, यस मैनेजमेंट इज ए साइंस बट नॉट ए प्योर साइंस। मैनेजमेंट इज नॉट ए प्योर और एग्जैक्ट साइंस, है कि नहीं? ये तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है आप लोग सेटिस्फाई करोगे, एग्री भी करोगे, है कि नहीं स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर मैनेजमेंट साइंस अगर इक्वल होता, है कि नहीं, तो क्या होता? तो साइंटिस्ट भी आके बिजनेस में सीईओ के पोस्ट में रह जाते, है कि नहीं? सीईओ वाले भी जाके साइंस वाले जो मेडिसिन डेवलप कर लेते, है कि नहीं? होता। क्लियर होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज सी द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि वो अलग है, ये अलग है। साइंस में और ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि हम वो मैनेजमेंट में नहीं है। ये जो साइंस में बहुत सारे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स है? नहीं, साइंस हैज नॉट दिस 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, it has many more, but what we say that out of those characteristics these 4 characteristics match with management, that's why we call it management. As all the characteristics of science is not satisfied by management, clear, all the characteristics of science is not satisfied by management, that's why, clear, means that's why, or the partial half, clear, somehow characteristic is matched with science, that's why we call management as a science, okay, but not a pure science, okay, not an exact science, ठीक है? आया समझ में कि why we are not call management as a pure science, exact science, because management has some characteristics matched with science, matched with the characteristic those in science, but not the all characteristics. क्या है वो all characteristics? जैसे कि साइंस में हम कुछ भी अगर डेवलप करने के पहले हमें क्या करना पड़ता है? लैब में टेस्ट करना पड़ता है, बट मैनेजमेंट में हम लैब टेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऑन द फील्ड, है कि नहीं? लैब कुछ है क्या? मैनेजमेंट लैब, जैसे केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब है, मैनेजमेंट लैब है क्या? नहीं है। मैनेजमेंट लैब, आवर फील्ड इज आवर मैनेजमेंट लैब, देखिए हमारा फील्ड ही अपना लैब है। जो भी कुछ सॉल्यूशन करना है अपने को डायरेक्ट फील्ड में जाके ही उसको सॉल्व करना है, हम लैब में नहीं जाते, है कि नहीं? वो है। दूसरा है कंपोजिशन, बहुत सारे कंपोजिशन के बेस्ड है साइंस, बट साइंस में मैनेजमेंट में ऐसा कुछ कंपोजिशन नहीं है। हम कोई भी कितनी भी क्वांटिटी में कितना भी वेटेज में हम उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ आवर बिजनेस, है कि नहीं? सो दैट्स व्हाई ऐसे बहुत सारे हैं जिसके वजह से हम साइंस मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं बोलते हैं, बट मैनेजमेंट को हम बोलते हैं क्या? मैनेजमेंट इज ए साइंस बट नॉट ए प्योर साइंस, क्लियर, बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सी ये जो हम देखेंगे पॉइंट, ये जो 3 हम देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने खुद मार्क किया है बच्चों के अंदर कि अगर हम कोई भी अगर पूछते हैं कि व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड साइंस, वो अपने आप कुछ भी वगैरह वगैरह लिखते जाते हैं, इट हैज नो सेंस। अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड साइंस, अगर आप ये 4 पॉइंट्स को बोल दो, लिख दो, ये 4 पॉइंट्स अगर आ गया तो वो आ गया समझ में, वो जो एग्जामिनर को डेफिनेटली बच्चे के पास नॉलेज है अकॉर्डिंग टू व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड साइंस, ठीक है? क्योंकि ये 4 पॉइंट के ऊपर ही बेस्ड है मैनेजमेंट, ठीक है? सो दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू एलाबोरेट अननेसेसरी थिंग, वेस्ट थिंग, क्लियर, जस्ट टू मेक इट लेंदी, कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? जस्ट डू वन थिंग, do remember this 4 point: systematized body of knowledge, observation, experience, universal applicable, cause and effect relationship, क्लियर? ये 4 पॉइंट को 2-2 लाइन में जैसे मैंने समझाया वो वही, ठीक है? अपने वर्ड्स में अगर 2-2 लाइन लिख दिया तो हो गया कंप्लीट, ठीक है? उसमें से आपका कोई भी कुछ भी नहीं दूसरा प्रीव्यू करेगा कि बच्चे कुछ बेकार चीजें कुछ लिख दिया है, ठीक है? क्लियर? तो तीनों चीजों में वो एक चीज को मार्क करना है, दैट इज द स्ट्रैटेजी, कि ये जो पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है? बस ये पॉइंट्स को आप डिफाइन कर दो, ये पॉइंट्स को आप स्टेट कर दो अपने सॉल्यूशन में, अपने राइटिंग में, तो डेफिनेटली वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, क्लियर?
So over that management, why we call management as a science. Then second point को जाएंगे, that why management is regarded as a profession. ओके, उसको हम एक प्रोफेशन क्यों बोलते हैं, जो कि है अपना प्रोफेशन. बहुत सारे हैं प्रोफेशन, डॉक्टर है कि नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, टीचर, ये सब है क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये सब है प्रोफेशनल्स, है कि नहीं. ये सब क्या करते हैं, अपना कुछ, जैसे मैंने बोला था प्रीवियस क्लासेस में, इन लोगों के पास भी कुछ कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसके वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये प्रोफेशनल में है, ये एक प्रोफेशनल में है. हम वी कॉल दोज एज द प्रोफेशनल्स. जो प्रोफेशनल में होते हैं, जो जिन लोगों का प्रोफेशनल नॉलेज होता है, जो लोग प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, उन लोग को हम क्या बुलाते हैं, प्रोफेशनल्स. ठीक है, तो उन लोग के पास क्या ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मैनेजमेंट के पास भी है. बिकॉज ऑफ दैट वी कंपेयर मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन. ओके, सो जैसे कि हमने देखा था कि देर आर we can say there are some important characteristics in profession. There are some important characteristics in profession which is followed by management, because of which we call management as a profession. जो मैनेजर होता है उन लोग को हम बोलते हैं प्रोफेशनल्स. क्यों बोलते हैं प्रोफेशनल, क्या क्वालिटीज है उन लोगों के पास जिसके वजह से हम उन लोग को क्या बोलते हैं कि प्रोफेशनल्स बोलते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे मैंने साइंस में बोला, प्रोफेशन में भी कुछ ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है, जिसके वजह से हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोलते हैं. तो क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज ए प्रोफेशन हैज सम स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ knowledge. Specialized body of knowledge, or we can say specialized knowledge. Body of knowledge नहीं लिख सकते, चलो specialized knowledge सिर्फ लिखते हैं. ठीक है, वो अच्छा साउंड करता है, क्योंकि हम अपने राइटिंग्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं, जो कि सुनने में अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे, याद रखने में अच्छा लगे. ठीक है, बिकॉज ऑफ साइंस में था सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें भी वो सिस्टमेटाइज निकाल के अगर हम डाल देंगे स्पेशलाइज्ड तो होगा, और वो बॉडी ऑफ नॉलेज को हटाने से भी हो जाएगा. तो वो था सिस्टमेटाइज, प्रोसेस में आता है, बट ये है स्पेशलाइज्ड. सिस्टमेटाइज और स्पेशलाइज में क्या डिफरेंस है. सिस्टमेटाइज प्रोसेस में आता है, धीरे धीरे आता है, बेस्ड अपॉन एम्पिरिकल सिचुएशंस. बट स्पेशलाइज मतलब स्पेशलाइज्ड, मतलब कुछ अलग, कुछ डिस्टिंक्ट, कुछ स्पेशल नॉलेज आप लोगों के पास होना पड़ेगा, है कि नहीं, टू बी कॉल्ड एज ए प्रोफेशनल, है कि नहीं. तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला था, वो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, अपना प्रोफेशनल सर्विस देते हैं. तो वो सर्विस देने के लिए उन लोग को क्या करना पड़ता है, एक प्रोफेशनल, एक स्पेशल नॉलेज उन लोग को गेन करना पड़ता है. जैसे डॉक्टर अगर बनना है तो एमबीबीएस को क्वालिफाई करना है, दैट इज द स्पेशल नॉलेज, क्लियर, दैट वी दे हैव, क्लियर. जैसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो दैट यू मस्ट हैव योर चार्टर्ड अकाउंट कोर्स को कंप्लीट करना है, कोर्स का डिग्री आपके पास होना चाहिए, है कि नहीं. जैसे टीचर बनना है तो यूजीसी नेट का क्वालिफाई करना पड़ेगा, है कि नहीं. तो ये सब जो है, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए आपको एलएलबी करना पड़ेगा, एलएलएम करना पड़ेगा, फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, है कि नहीं. तो वो स्पेशल नॉलेज गेन करने के बाद ही हम वो प्रोफेशन के रिगार्डिंग सर्विस लोगों को देख सकते हैं, है कि नहीं. So that's why it is called a special knowledge.
कि प्रोफेशन इज बेस्ड अपॉन सम स्पेशल नॉलेज, क्लियर, which are based upon our own experience and based upon our own knowledge and based upon our technical skill. ठीक है, टेक्निकल स्किल भी रहता है, जो स्पेशल नॉलेज गेन करने से कुछ टेक्निकल स्किल, टेक्निकली क्या कुछ टैलेंट मिलता है जिसके साथ हम अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पॉइंट जो कि प्रोफेशन के पास है, और मैनेजमेंट भी ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, क्योंकि मैनेजर भी जो होता है वो भी क्या करता है, आपको अगर कुछ मैनेजमेंट, जैसे कि हम बोलते हैं कि सर घर में अपने मम्मी वो तो मैनेज करते हैं, तो वो उनको हम थोड़ी ना मैनेजर बोलते हैं क्या, मैनेजर नहीं बोलते हैं उन लोग को, है कि नहीं। सब अपना अपना लाइफ, जो रिक्शा वाला है, जो रिक्शा पुलर है, वो भी मैनेज करता है अपना टाइम, तो उसको हम मैनेजर बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं, क्लियर। उन लोग को हम एक कंपनी में जॉब नहीं दे सकते, बिकॉज इफ यू वांट टू हैव ए मैनेजर यू हैव टू satisfy some or you have to gain some special knowledge. आपको MBA करना पड़ेगा, आपको कॉमर्स बीकॉम और बीकॉम BBA, ठीक है, MCOM MBA, ये आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। ये करने के बाद ही आप लोगों के पास मैनेजमेंट का जो है स्पेशल नॉलेज आएगा, जिसके हिसाब से आप काम को अपना सीरियसली अच्छे से एफर्टफुली कर पाओगे, है कि नहीं। तो मैनेजमेंट में भी वही है। तो मैनेजमेंट अगर आपको करना है, और वी कैन से इन मैनेजमेंट the thing that special knowledge, you must have your special knowledge, ठीक है। if you don't have your special knowledge you cannot manage your things, ठीक है। so that's why management is called as a profession, because of this point, that is it has some special knowledge, okay। बाकी दूसरा second point, service motive in business there is only one objective motive मतलब ऑब्जेक्टिव, एम। इन बिजनेस वी हैव वन एम, क्या है वो एम, वो एम है टू अर्न प्रॉफिट, क्लियर। वैसे मैनेजमेंट में भी एक एम है, जैसे कि प्रोफेशन में प्रोफेशनल्स का एम क्या रहता है, जैसे डॉक्टर का क्या है एम, कि टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी सर्विस मोटिव, सर्विस देना है लोगों को, ठीक है कि नहीं। डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, टीचर, ठीक है, ये सब लोग जो हैं दोज आर कॉल्ड एज ए प्रोफेशनल्स, their aim, clear, is to provide quality service to the aspirants, जो भी आएगा to the public, है कि नहीं। तो that's why this is called that this is the aim, सर्विस प्रोवाइड करना है, ओके। तो मैनेजमेंट भी वही है। मैनेजमेंट में क्या कहते हैं, इन मैनेजमेंट आल्सो वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस, what kind of service, here we provide service to satisfy the institutional objective, to satisfy the सोशल ऑब्जेक्टिव, टू सेटिस्फाई द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। वो सब ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अच्छे तरीके से गेन कर पाए, अचीव कर पाए, उसके लिए जो मैनेजर रहता है, मैनेजमेंट का जो टीम रहता है, वो लोग क्या करते हैं, अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अच्छा प्लान बनाते हैं, गुड प्लानिंग, क्लियर, वाइब्रेंट प्लान, वाइब्रेंट एग्जीक्यूशन, वाइब्रेंट डायरेक्शन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब पूरा वाइब्रेंटली करते हैं, मतलब अपना सर्विस पूरा प्रॉपर्ली देते हैं, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव सब फिक्स्ड हुआ है वो सब ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से हम अचीव कर पाए, है कि नहीं। सो एज लाइक सर्विस मोटिव as a objective, as a characteristics of profession, that is also the characteristics of management, that to provide service, quality service to the aspirant or to the public or to the persons those are associated with us, क्लियर। मैनेजमेंट के साथ जो भी एसोसिएटेड उसको वो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। डॉक्टर के पास, जैसे कि डॉक्टर के पास अगर आप एसोसिएट होगे तो ही आपको सर्विस मिलेगा, डॉक्टर के पास जाने से ही सर्विस मिलेगा, वो आपके घर पे आके सर्विस नहीं देंगे, है कि नहीं। आपको उनके पास जाना पड़ेगा, एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा, टीचर के पास जाना पड़ेगा, है कि नहीं। सो तभी आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर। दैट इज द सेकंड पॉइंट, दैट इज सेटिस्फाइड बाय मैनेजमेंट, दैट व्हिच हैज इन प्रोफेशन। नेक्स्ट है, और क्या है प्रोफेशन में, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। इन प्रोफेशन देयर इज ए कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट भी बोल देता हूं, वो जो दोनों लिंक्ड है, वो एक प्रोफेशनल बॉडी
ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जैसे मैंने बोला था, देखो स्टूडेंट, ये 2 पॉइंट है। एक प्रोफेशनल बॉडी ऑफ एसोसिएशन, जो प्रोफेशनल होते हैं उन लोग का एक एसोसिएशन रहता है, ताकि आप देखोगे कि अपने कंट्री में जितने भी डॉक्टर्स हैं उन लोग के पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है कि नहीं? मतलब वो जब अपना जो स्पेशल नॉलेज गेन करते हैं, उन लोग के पास जब डिग्री आ जाता है, एंड वेन एवर दे आर रेडी टू प्रोवाइड द सर्विस टू बी कॉल्ड एज एन डॉक्टर, बिफोर दैट दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ इन द पर्टिकुलर एसोसिएशन, जो है मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, है कि नहीं? सबका एक एक एसोसिएशन रहता है। आपको क्या करना है, वो एसोसिएशन में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो एसोसिएशन है वो क्या करते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस इज सर्विस मोटिव, वो लोग फोकस करते हैं कि अपना सर्विस कैसे अच्छे से लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, वी मस्ट सब्जेक्ट टू सर्विस मोटिव, नॉट टू प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, ये सब जो है दिस आर कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट, है कि नहीं? तो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितना फीस चार्ज करना है, कौन से वक्त में हमें सपोर्ट करना है, कौन से वक्त में सपोर्ट नहीं करना है, कौन से एक्सटेंट में सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये सब चीजों का लेके क्लियर द प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्लियर, जैसे कि अपने पास बहुत सारे हैं, एमबीबीएस का है, ओके, यूजीसी अपना टीचर्स का, चार्टर्ड अकाउंट्स का है, मैनेजमेंट अकाउंट्स का है कि नहीं? सब लोगों का जो है एसोसिएशन, वो लोग क्या करते हैं, द कोड ऑफ कंडक्ट डिटरमाइन करते हैं, जो कि ईच एंड एवरी प्रोफेशनल मस्ट फॉलो ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पब्लिक, है कि? तो ताकि वो कोड ऑफ कंडक्ट से क्या रहता है कि दे डोंट हैव फियर कि दैट पर्टिकुलर प्रोफेशनल में चीट द कस्टमर, कि ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर भी कोई चीट करता है तो हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अपना मोटिव है टू प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करना है, नॉट कि टू अर्न इनकम नहीं अर्न करना है, प्रॉफिट, इनकम तो करना है डेफिनेटली, बट प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। जैसे कि हम कॉमर्स स्टूडेंट है, हमको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्निंग एंड प्रॉफिट। अर्निंग करना है तो क्या हम बचेंगे, कैसे बचना है, बट प्रॉफिट अर्निंग नहीं करना है कि नहीं? प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम कुछ अर्निंग करेंगे ताकि हम अपने फैमिली को मेंटेन कर पाए, अपने रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मेंटेन कर पाए, बट प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए कि चलो चीट करके, डुप्लीकेट एक्टिविटीज करके, डुप्लीकेट काम करके हम चीट करके कस्टमर से पैसे लें, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देयर इज ए प्रोफेशनल बॉडी ऑफ एसोसिएशन, जो कि डिटरमाइन करते हैं अपने हर प्रोफेशनल्स को एक क्या बांध के रखते हैं, कंबाइन करके रखते हैं, एंड टाइम टू टाइम कोड ऑफ कंडक्ट को अपडेट करते रहते हैं ताकि सब प्रोफेशनल अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो मैनेजमेंट में भी वैसा ही है। मैनेजमेंट भी क्या है कि मैनेजमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है। जो मैनेजमेंट पोस्ट में रहते हैं, जब भी आप मैनेजमेंट के एक पोस्ट में आओगे तो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स, कुछ पॉलिसीज आपको पहले से दिया जाता है, उसी के अंदर आपको काम करना पड़ता है कि नहीं? जो कि हम बोलते हैं अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जो कि हम देखेंगे इन आवर फ्यूचर क्लासेस। ठीक है, कि मैनेजमेंट में क्या रहता है कि अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ज्यादा रहता है कि नहीं? अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो देयर इज ए कोड ऑफ कंडक्ट, जे व्हाट मच ऑफ अथॉरिटी, व्हाट मच ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ मच यू आर अकाउंटेबल। ठीक है नहीं? अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये इन लोगों के भीतर, ये जो कंटेंट के भीतर एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि कौन क्या करेगा, कितने एक्सटेंट तक करेगा, कौन कितने एक्सटेंट तक रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये सब काम होता है। हर कोई सब काम नहीं कर सकता है, स्पेशलाइज है। स्टाफिंग जो हम बोलते हैं, स्टाफिंग मतलब फिक्सिंग और पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, है कि नहीं? जो जिसको अच्छा काम आता है उसी को वो काम देना है। इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक का काम ही देना है, इलेक्ट्रिशियन को पेंटिंग का काम नहीं देना है, अकाउंटेंट को अकाउंट का काम देना है, अकाउंटेंट को इलेक्ट्रिक का काम नहीं देना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कि स्पेशलाइज्ड क्या देना है कि टास्क देना है अकॉर्डिंग टू आवर कोड ऑफ कंडक्ट। क्लियर? एंड प्रोफेशनल बॉडी ऑफ एसोसिएशन, मैनेजर्स का भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बॉडी रहता है, जो कि टाइम टू टाइम डिसाइड करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। ठीक है, एंड वो इवेल्यूट भी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हर एक मैनेजमेंट में रहता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं, है कि नहीं? मैनेजमेंट ऑडिट, जो कि एक टीम रहता है कि नहीं? एक कमिटी जिसका काम रहता है कि मैनेजमेंट के अंदर जो भी हैं, दोज आर द मैनेजर्स, क्लियर, और दोज आर द एमिनेंट पर्संस अपॉइंटेड इन डिफरेंट
important post, clear, whether they are satisfying or whether they are provide quality service, whether they are responsible, whether they are their performance is good or bad, excellent, what are the efficiency, clear, वो सब चीजों को वो ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, ताकि वो जो सर्विस मोटिव में आए हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, उनको एक अच्छा अप्राइज किया जाएगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उन लोगों के लिए कुछ भी जो है ड्रॉबैक, ठीक है, प्रमोशन डिमोशन, अगर अच्छा काम किया तो प्रमोशन देना है, अगर अच्छा काम नहीं किया है, अगर सोचो कि आप एक अच्छे पोस्ट में हो, मैनेजर के पोस्ट में हो, सीईओ की पोस्ट में हो, आपको महीने का 1 लाख 1.5 लाख सैलरी देता है कंपनी और आपका आउटपुट क्या है 0, तो अब कंपनी क्या करेगा, थोड़ी डेफिनेटली आपको कंपनी से निकाल देगा और नहीं तो लोअर पोजीशन में ला लेगा, है कि नहीं, बिकॉज कंपनी के पास ऐसा मतलब फालतू का पैसा तो नहीं है आपको हर महीने फालतू का 1 लाख रुपया दे, है कि नहीं, तो उसके लिए वो क्या बनाता है, अपना एक बॉडी ऑफ एसोसिएशन बनाता है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है नहीं, वो जो टीम है वो चेक करते हैं कि मैनेजर्स लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्लियर, ओके, तो ये जो है 4 पॉइंट, दोज आर इन प्रोफेशन एंड आल्सो इन मैनेजमेंट, सैटिस्फाइड बाय मैनेजमेंट, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल, देखो जैसे हमने साइंस में बोला कि मैनेजमेंट इज नॉट ए प्योर साइंस, नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, क्लियर, because all the characteristics in science are not fulfilled by management, clear, but management we call as a profession and pure profession, because profession में जो जो रहता है management तो वही है, management भी एक profession ही है कि नहीं, तो दोनों equal है, so that's why management is called as a pure profession, okay, clear, and now the last thing, that management is an art, management is called as an art, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं साइंस के 4 और प्रोफेशन के 4 देखा और आर्ट के भी, ओके, ये सब को क्या करना है आपको, ये सब अगर आप याद रख लो, अगर कोई भी आपको पूछेगा व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड प्रोफेशन, अगर वो 4 पॉइंट आप बोल दोगे तो ही सेटिस्फाइड, ठीक है, आपको और दूसरा कुछ नहीं बोलना है, क्लियर, यू हैव टू इंप्रेस, तो इंप्रेशन कैसा आएगा, एग्जैक्ट एक्यूरेट वर्डिंग देने से ही क्या इंप्रेशन होता है, आप अपने हिसाब से फालतू का वर्ड्स यूज करके इंप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है, सो नाउ वी सी मैनेजमेंट, व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज एन आर्ट, ओके, सी there are some important characteristics in art which is followed by management, because of which we call management as an art, देखो टेक्निकली लिखना है कि नहीं, स्मार्ट वर्क, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, है कि नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, गधे का परिश्रम नहीं करना है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, गधे जैसा एफर्ट नहीं डालना है, वो एफर्ट डालना है बट स्मार्टली डालना है, क्या क्या मैंने भाई देखो वही है, इधर कुछ डिफरेंट नहीं है, तो वो मैं पूरा इरेज करता फिर वो दूसरी बार लिखता, तो उससे बेटर है क्या हो गया कि बस जो जो चेंज होना है वो चेंज कर दिया, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, है कि नहीं, जैसे हम बोलते हैं सब में हम बोलते हैं कि हार्ड लेबर करो, यस डेफिनेटली हार्ड लेबर करना है बट स्मार्टली, हार्ड लेबर करना है डेफिनेटली, there is no shortcut to success and there is no shortcut or cheat code in hard work, हम बोलेंगे सर हार्ड वर्क हम कैसे, हार्ड वर्क का कुछ चीट कोड है, कुछ मतलब लूप होल्स है जिसके बीच में हम जा सकते हैं, नहीं, हार्ड वर्क का कोई भी लूप होल नहीं है, बट एक इसका क्या है, एक पिलर है जो कि आपके हार्ड वर्क को और बेहतर बनाएगा, हार्ड वर्क सब करते हैं, गधा भी हार्ड वर्क करता है बट उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, जो आप हार्ड वर्क करना है बट स्मार्टली करना है, वो स्मार्ट वर्क नहीं करता है, स्मार्टली करना है मतलब टाइम को बचाना है, स्पेस को बचाना है, ठीक है, जो जो कामकार हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस डालना है, सभी के ऊपर ज्यादा फोकस डाल के अपने माइंड को बेकार में क्लमजी नहीं करना है, ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ माय एडवाइस दैट डू स्मार्ट वर्क, ओके, स्मार्ट स्टडी भी हम बोलते हैं, स्मार्ट वर्क हम सब में यूज करते हैं, हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्टली करना है, ठीक है, स्मार्टली कैसे हो सकता है, प्लानिंग, अच्छा एक प्लान बनाना है कि नहीं, आपको पढ़ाई के लिए, आपके पढ़ाई को लेकर, आपके कोई भी
जब भी हम करते हैं, कोई फैमिली प्रोग्राम होता है, कोई पिकनिक होता है, कोई गैदरिंग होता है, हम क्या करते हैं, पहले प्लान बनाते हैं ताकि वो अच्छे से हो पाए। तो बट पढ़ाई के टाइम पे वो हम भूल जाते हैं, है कि नहीं? दैट इज ए ट्रू थिंग। हम देखते हैं स्टूडेंट्स के अंदर कि सोचो कि स्टूडेंट का बोलो कि समर वेकेशन आने वाला है, तो वो आज से अपना पूरा प्लानिंग बनाएंगे, समर वेकेशन में किधर जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, पूरा एक ब्लूप्रिंट रहेगा, पूरा प्लान रहेगा, है कि नहीं? बट हम बोलेंगे कि चलो अभी आपका एग्जाम आने वाला है, 1 महीने में एग्जाम है, तो नो प्लान। वो क्या सोचते हैं, हाँ चलता है, ऐसा ही पढ़ते रहेंगे, ऐसा ही एग्जाम आएगा, जो पेपर आएगा वो पढ़ देंगे, ठीक है नहीं? ऐसा नहीं करना है। आप एक वेस्ट काम के लिए, वेस्ट नहीं बोलेंगे, आप हर एक काम के लिए जैसे प्लान करते हैं, अपने स्टडी में भी आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो ये भी एक आर्ट ही है कि नहीं? प्लानिंग इज ए आर्ट। प्लान करना है, अच्छे से प्लान करना है, ठीक है? तो देखो क्या करना है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेटिस्फाइड और दैट इज पोजेस्ड इन आर्ट एंड सेटिस्फाइड बाय मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ विच वी कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ओके, तो कौन सा है वो क्वालिटीज? ठीक है, देखो फर्स्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, है कि नहीं? प्रैक्टिकल नॉलेज, और वी कैन से ऑन द फील्ड, ऑन द फील्ड नॉलेज, है कि नहीं? आर्ट में जो आर्टिस्ट लोग रहते हैं, जो आर्ट का क्लियर क्वालिटी रहता है, जो नॉलेज रहता है, उन लोग को हम आर्टिस्ट बोलते हैं, है कि नहीं? तो वो जो आर्टिस्ट रहते हैं, उनका जो है काम कैसा है, दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट इज देयर प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नहीं है। हम सिंगर को बोलेंगे सर आपको एक गाना गाना है कि नहीं, और आपको गाने के हिसाब से आपको ट्रेनिंग देना है कुछ, चलो, तो क्या करेगा, वो थोड़ी ना आपको वर्ड में समझाएगा, वो क्या बोलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज देगा आपको, प्रैक्टिकल ही नॉलेज देगा, वो गा के ही आपको बता सकता है कि नहीं? अगर आपको एक आर्किटेक्ट को बोलेंगे कि सर चलो हमें कुछ सिखा दो, नहीं आर्ट के ऊपर, तो क्या बोलेगा, वो थोड़ी ना बोलेगा कि ये ड्रॉ करो, वो ड्रॉ करो, मुंह से थोड़ी ना बोलेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, वो भी आपको प्रैक्टिकली करके बताए कि ये देखो ये ऐसा ऐसा करना है। कि मैनेजमेंट में भी वैसा ही है। अगर मैनेजर है तो मैनेजर को अगर आप एक सिचुएशन दो सॉल्व करने के लिए, तो वो मुंह से नहीं बोलेगा, वो क्या करके दिखाएगा, वो अपने हिसाब से प्लान करेगा, अपने टीममेट्स को लेगा, ठीक है, अपने टीममेट्स के हिसाब से प्लान एग्जीक्यूशन वो अपने आप करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल नॉलेज, है कि नहीं? यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज प्रैक्टिकली, जैसे आर्ट में हम करते हैं प्रैक्टिकली ही अप्लाई हो सकता है, थ्योरेटिकल एप्लीकेशन नहीं है। ओके, तो दैट्स व्हाई ये जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आर्ट में, प्रैक्टिकल नॉलेज, और ऑन द फील्ड के ऊपर ही जाके देना है कि नहीं? घर पे बैठ के आप नहीं दे सकते, मुंह से आप नहीं दे सकते, थ्योरेटिकली नहीं दे सकते, यू हैव टू प्रोवाइड इट बाय योर प्रैक्टिकल एक्टिविटी। ओके, दैट इज द पॉइंट which has in art and that is satisfied in management, that's why we call management as art। तो पहला पॉइंट हो गया। बाकी दूसरा क्या है? दूसरा है रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस, जो आर्टिस्ट लोग रहते हैं, जैसे कि हम देखते हैं जो सिंगर्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, ओके, वो लोग क्या करते हैं, रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहते हैं, हो कि नहीं? कोई कंसर्ट है, कोई प्रोग्राम है, वो उधर जाके वो लोग परफॉर्म करते हैं, बट जब भी कोई नहीं रहता है घर पे भी वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आर्ट इज सच ए डिसिप्लिन वेयर वी कॉल, एक फ्रेज हम यूज करते हैं क्या, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। परफेक्ट होने के लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक बार किए हो गया, हम सोचेंगे चलो हो गया मेरा, छोड़ दो अभी, तो कुछ गैप के बाद करेंगे तो वो नहीं होगा, भूल जाएंगे। परफेक्ट, तो परफेक्ट किधर से हो? परफेक्ट मतलब क्या है कि आंख बंद करके भी आपको वो बोलो तो वो आप कर दोगे, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट, है कि नहीं? तो परफेक्ट कहता है प्रैक्टिस करना है, रेगुलरली करना है। कि सोचो कि हो गया कि ये तो मेरा हो चुका है, मैं क्या कर रहा हूं, नहीं मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, परफेक्ट होने के लिए, है कि नहीं? अभी आप बोलोगे कि सर मैनेजमेंट में तो मुझे पूरा सब कुछ आ रहा है मेरे, है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं मुझे और प्रैक्टिस नहीं करना है, तो आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपको अगर
परफेक्ट होना है तो रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर चीज में, क्लियर, बिकॉज प्रैक्टिस मेड परफेक्ट, दैट इज ए टर्म यूज्ड इन आर्ट। प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगे, है कि नहीं। जो भी फेमस आर्टिस्ट हैं बिकॉज ऑफ देयर रेगुलर प्रैक्टिस, अगर वो कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, बीच में छोड़ देता है, तो वो डेफिनेटली फेमस नहीं हो पाता है, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं हो पाता है कि नहीं। सो दैट इज देयर इन आर्ट, दैट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विच इज हैज इन आवर मैनेजमेंट। अपने मैनेजमेंट में भी वो है कि नहीं, प्रैक्टिस। मैनेजमेंट में भी हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है कि नहीं। फील्ड वर्क डेली करना पड़ता है, डेली न्यू सिचुएशन, न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू हर्डल्स, ठीक है। फील्ड में जाना है, सिचुएशंस को हैंडल करना है, डेली सेल्स कितना होगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, फाइनेंस कैसे आएगा, ठीक है। फाइनेंस को सोर्स क्या होगा, एप्लीकेशन किधर करना है, अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना है, ये सब जो है काम मैनेजमेंट टीम रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहते हैं, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि परफेक्ट होना है उन लोग को लिए, ठीक है। तो साइंस सॉरी ओके स्टूडेंट्स, सो हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। दैट इज इन आर्ट, द आर्टिस्ट यूज्ड टू डू रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर उन लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता है कि नहीं, ताकि रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही हम परफेक्ट बन सकते हैं। तो मैनेजमेंट के जो भी हैं पर्सन्स, क्लियर, द मैनेजमेंट पर्सन्स आल्सो यूज्ड टू हैव practice the things, practice their task regularly so that they could be perfect in their performance, clear. So see students, another point is there, that is continuous practice, clear. तो continuous practice क्या है? वही है रेगुलर, कंटिन्यूसली करना है, एवरीडे करना है, विदाउट एनी ब्रेक। क्योंकि अगर आप ब्रेक कर दिए तो क्या रहेगा कि ब्रेक कर देने से वो जो है आपका जो फ्लो है, क्लियर, परफेक्टनेस का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू डू रेगुलर प्रैक्टिस, क्लियर। दैट इज अनदर पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट which has in management, okay. देन नेक्स्ट और दो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आर्ट के पास है और वो मैनेजमेंट के पास भी है। क्या है वो? क्रिएटिविटी, ओके। क्रिएटिविटी मीन्स व्हाट? क्रिएटिविटी मीन्स कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है कि नहीं, ताकि लोगों को अच्छा लगे। सोचो कि एक जो आर्टिस्ट है वो हमेशा हर जगह पे जाता है, हर कोई फंक्शन में जाता है, वो एक ही गाना गाता है कि नहीं। एक आर्किटेक्ट है, उसको आप अगर कोई भी ड्राइंग करने के लिए बोलो तो वो एक टाइप का ही ड्राइंग बनाता है। तो लोग क्या सोचेंगे कि चलो ये कोई अच्छा बंदा नहीं है, इसको कुछ नहीं आता है, बस एक दो चीज सीख के आ गए, तो दैट मीन्स ये आर्टिस्ट नहीं है। क्योंकि आर्टिस्ट मतलब एक लोगों का एक कॉन्सेप्ट रहता है, एक प्रीव्यू रहता है कि आर्टिस्ट है मतलब वो कुछ भी कर सकता है, नया नया कुछ भी कर सकता है। दैट इज क्रिएटिविटी, क्लियर। यू मस्ट हैव ए क्रिएटिव पर्सन फॉर to call be a artist, clear. In different situation that we say, एक सिंगर हो, एक पेंटर हो और एक आर्किटेक्चर हो, ये जब जो है आर्टिस्ट, इन लोग को आप कोई भी सिचुएशन में कोई भी कुछ करने के लिए बोलो, ये लोग क्रिएटिवली वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, समथिंग न्यू करते हैं, है कि नहीं। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच हैज इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पास भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे? कि जो मैनेजमेंट का जो टीम मेट है, मैनेजमेंट पर्सन्स, दे आर आल्सो क्रिएटिव, ओके। in the field of their regular practice, they are regularly facing lot of problem in production, in marketing, in manage, clear, in promotion, in financing. वो लोग जो different problem face करते हैं, ठीक है, वो लोग face करने के बाद उन लोग को लिए मतलब रेगुलर प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाता है। परफेक्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, नया नया सिचुएशन को क्रिएटिवली हैंडल कर पाते हैं, ओके। सो क्रिएटिविटी कैन बी अचीव्ड बाय रेगुलर प्रैक्टिस, ओके। तो एंड द क्रिएटिविटी मस्ट रिक्वायर्ड। अगर आप क्रिएटिव नहीं होगे, अगर आपको डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिसीजंस नहीं लोगे, हर एक सिचुएशन में वो एक ही डिसीजन लोगे, तो आपका जो टीममेट्स है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो आपको फॉलो नहीं करेंगे, है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज यूज्ड टू हैव रेगुलर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिव माइंड, ओके। ताकि क्या है, जो है जो पोजीशन प्रोफेशनल का जो है, जो रेपुटेशन वो बना रहे। जैसे आर्ट के पास है वैसे मैनेजमेंट के पास है भी है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स विच क्रिएटिविटी, ओके। एंड देन द लास्ट पॉइंट विच हैज बोथ इन आर्ट एंड मैनेजमेंट, दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड। जो कि आर्टिस्ट लोग कहते हैं, आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं कि वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं बेस्ड अपॉन रिजल्ट,
रिजल्ट ओरिएंटेड, कुछ पाना है, सक्सेस, परफॉर्म करना है तो गाना गाना है, ठीक है। वो जो एक कंपटीशन चल रहा है उसमें पहले फर्स्ट आना है, उसके लिए वो अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, है कि नहीं। सो रिजल्ट ओरिएंटेड, देयर ईच एंड एवरी एक्शन इज डायरेक्टेड देम टुवर्ड्स ए अचीविंग ए रिजल्ट, है कि नहीं, कि विदाउट एनी रिजल्ट दे आर नॉट हैप्पीली डूइंग समथिंग। उन लोग के लिए कुछ रिजल्ट पाने के लिए ही वो लोग अपना परफॉर्मेंस देते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट पर्सन भी वैसा ही रहता है कि नहीं, जो कि हमने पॉइंट देखा है उसमें कि बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव भी, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मतलब मैनेजमेंट टीम जो भी काम करती है, जो भी प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग जो भी होता है, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज दैट इज बेस्ड अपॉन और दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव पाने के लिए ही हम वो काम करते हैं जो कि मैनेजमेंट का जो काम रहता है, जो प्लान करते हैं, जो क्या करना है, कैसे करना है, द डायरेक्शन क्लियर, द सुपरविजन, द मोटिवेशन, एवरीथिंग क्लियर। तो उससे क्या पता चलता है कि मैनेजमेंट अपना काम ऑब्जेक्टिव के बेस्ड पे ही करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड ही करता है। ओके क्लियर। सो this characteristics fulfilled by both management and both by art, so that's why management is also considered as art. So because of fulfilling these four characteristics, management is also called as an art. Okay, clear? Hope students you might have cleared about what is management and why management is called as science, art and profession. Okay, see students, whenever somebody asks you a question regarding this, why management is called science, art, profession, you have to simply just do one thing, that science has these characteristics and management has similar characteristics, that's why we call management as science. Science has this profession and management has also these characteristics, that's why we called management as profession, and the characteristic those have in art, those are also present in management, that's why we call management as art. ठीक है, ये अगर आप इतना बोल दोगे तो that is enough. It clarifies that you are much aware and you much have knowledge about why management is called science, art and profession. Clear? I hope this class is benefited for you, and if you have any doubt regarding this class, please do comment me and I will definitely clarify all your doubts. Okay, so in the next session we do the other things of management. See student, management is a very vast concept and I am trying to complete all the portions in one classes. Okay, so for today we end up the class over here, and best wishes for your future. Okay, thank you.